the PhD coach does and how Dr. Tripti helps people in doing their job. So the PhD coach essentially is one of the very few platforms currently available in India. What are the key challenges I'll be facing in this process and how you will be helping me? When you are trying to join any course in research, not just PhD, but Do you think these PhD scholars who are doing research, they'll be replaced one day because of this AI? definitely not. ट्रेनिंग रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगी? Obvious reason is, let's take example of ChatGPT. इन स्कॉलर्स के पेपर्स पब्लिकेशंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. व्हाट इज़ द रियल गैप? कहाँ पर ये लोग स्टक हो जाते हैं? मुझे लग रहा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे आर एब्सोल्युटली डूइंग इकोसिस्टम, द लैक ऑफ इकोसिस्टम. तो यूनिवर्सिटीज के जो इकोसिस्टम्स होने चाहिए, इट शुड बी इन सच अ वे कि हेलो एवरीवन, नमस्कार. मेरा नाम तुषारिका शर्मा है. एक और खूबसूरत अंश में आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिससे बहुत लोग डरते हैं, जिसके आने के बाद बहुत लोगों ने हज़ारों करोड़ की कंपनीज बना ली और जिसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस को लेकर हम बहुत सारे सवालों को देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स को देखते हैं. आज हमारे बीच एक ऐसे ही एक्सपर्ट हैं जो PhD स्कॉलर्स या स्कॉलर्स, जो स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे, जिनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे PhD स्कॉलर्स हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल यूटिलाइजेशन के साथ उनकी रिसर्च में हेल्प करें. हमारे साथ हैं डॉक्टर तृप्ति. शी इज़ द फाउंडर ऑफ द PhD कोच. और आज हमारे बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके एथिकल यूज़, कैसे आप और हम जैसे लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो PhD स्कॉलर्स हैं, जो अलग अलग स्कॉलरशिप्स के लिए, अलग अलग रिसर्च पेपर्स के लिए काम कर रहे हैं, कैसे AI उनकी हेल्प कर सकता है. हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर तृप्ति मैम कैसे बात करती हैं, किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करती है, कैसे PhD स्कॉलर्स को हेल्प करती है, कैसे रिसर्च स्कॉलर्स को हेल्प करती है और क्यों करती हैं, एंड ऑल्सो अबाउट द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप में से सब लोग सुनना चाहेंगे. सो डॉक्टर तृप्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच. आई एम डूइंग रियली वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. Congratulations for doing such a great job. I've seen a lot of people doing things related to AI. They're speaking about cybersecurity and artificial intelligence, but nobody is speaking it, how it can be helpful for research scholars, how it can be helpful for developmental processes. You are doing something like this, so I would like to congratulate you for that. And I would like to ask what the PhD coach does and how Dr. Tripti helps people in doing their job. So I would like to summarize it so briefly that everyone can understand. So the PhD coach essentially is one of the very few platforms currently available in India that is supporting researchers, professors, anyone who is doing Wow. research. And what we do is, we have our courses, we have our templates, we do webinars, we do trainings, we do faculty development programs as well, so that everyone who is interested in research, irrespective of not just the fact that he or she is just a PhD scholar or a professor, but if he or she is a school student or someone who's into corporates, anyone basically, Wow. doctors who are interested in doing any kind of research, who are Research. curious. Wonderful. So for all of them, we are simplifying this process, because research in itself sounds so overwhelming to Yes. most of the stakeholders. So we just have this mission that we want to make research as easy as possible with systematic processes, frameworks, templates, courses. So anyone sitting at any corner of maybe a small town or a big city, for them it is accessible and available. So Wow. that's what the PhD coach is trying to build, and has successfully reached 10,000 plus researchers Wow. so far. And this is definitely going to be a bigger number in future, because a lot of people are curious about AI research, how they can use AI ethically, and we are trying to bridge all those gaps. Wow.
So, Dr. Tripti, one more question, because you are married also, working mother, entrepreneurs और educators, इन तीनों आइडेंटिटीज को आप लेकर चल रही हैं, इसमें सबसे टफ रोल क्या था? I would say being a working mom has never been very easy for me. और entrepreneur and educator होने को मैंने कभी जॉब समझा ही नहीं. I always used to, treat it as my passion. तो I would say, I was running behind perfection initially, because I remember I used to carry my 18 months old to my office, and he was always there with me during meetings, trainings, client calls. So I had a bit of this guilt that I'm not able to give 100% to any of these roles. But then gradually I realized that it was not about being 100% perfect and giving equal time to all of the things that I was giving. It was all about balancing the things. So here I also want to highlight one more thing, that there are a lot of, PhD parents, there are a lot of people who are married, who are going to married, who have responsibilities of kids, spouses. So after that I've seen that they kind of, lose their interest, or they have this thing that, okay, I'll leave my research. So don't do that. I mean, I would say them that you should not don't try to be perfect in that. Just keep going. Yeah. And that's what we need, as someone who's playing multiple roles around. Correct. So yeah, the journey has never been easy, but understanding that we don't have to be perfect Correct. is what makes it easier. एब्सोल्युटली. आप बहुत सारे लोगों को, पीएचडी स्कॉलर्स को इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं. व्हाट इंस्पायर्स यू, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट कीप्स यू गोइंग एंड डूइंग दिस वर्क? So, this is a deep rooted question. I mean, I cannot say that there is one person or one thing that keeps me going, or that keeps me motivated, or that inspires me. But I've always, in the entire childhood, I've always lived with my nana and nani. Wow. So that generation, that baby boomers generation, and being from a very small town, वो एक बहुत mindset restricted था almost हर किसी का, कि girls cannot study more, या फिर उन्हें एक limit तक पढ़ाना चाहिए. But that was not the case with me. Not just my Nana ji and Nani ji, but my mama and mami also. They were all trying to push me to become someone Wow. who can, create an impact. Or wo padhai, wo skills, they've always been towards that only. Great. Keeping everything aside. So my inspiration comes from there, ki I have to do something, because someone in the past had, Yes, trust. made those efforts. Along with that, every day when I see my mom, my grandmother, and all the people around me who are so, their willpower, their strength also becomes my source of inspiration. My brothers, everyone. So being in around so many males, I've never felt that I'm treated as lesser. Wow. So this is my inspiration. And finally, I would never ever miss a chance to mention that my husband, who you said left his VP level position job just to inspire me more, just to become a part of this journey in such a manner that he can provide me everyday support, everyday inspiration, everyday partnership. And this is how we keep going. Wow, wonderful. So, Dr. Tripti, let's suppose I am a PhD scholar, or I am someone who's working on any research. Right? What are the key challenges I'll be facing in this process, and how you will be helping me? So, see, there are a lot of challenges. I would say that when you are trying to join any course in research, not just PhD, but a lot of students who go to foreign universities, their assignments are completely research based. And then, of course, if you are joining a PhD, so at the time of joining, you are very excited. You feel that, I'll be able to get this degree, I'll be able to make it big for myself, it will be beneficial for my career as well. But
after being into the system, once you get the admission after clearing all sorts of entrance tests and everything, the real challenge begins after that, because at that particular stage you do not know what research really mean. And with AI coming up in the market, a lot of AI tools are there, so many researchers think that okay, I'll use chat gpt, I'll create my proposal, I'll use chat gpt, I'll create a research paper or my thesis or chapters, and all sorts of options are there in front of them. But the problem is, if you use those tools in such a manner that it is later on not acceptable, then that becomes a very big challenge, because earlier you were thinking that okay, it is very easy, I'll do it. But there are certain things that you need to understand, and keeping that in view, understanding foundations and basics are also very important. Correct. So that is where challenges lie, because the foundation of research is bit critical. It needs a researcher to think critically, to make decisions on their based on their own rigor. So it's not that you can rely on any tool or any person or anyone for that. That is something that you need to develop to get over the challenges that you might face in this research journey. Absolutely. And you are helping them via these methods that you have. Exactly. So you were telling me you have an experience of 12 years, right? Yes. I would like to ask you to elaborate that a little bit more. What you have done in last 12 years, how many people you have helped in past years? So, over the past 12 years, I would say that I have also seen a revolution. So, talking about the very first year when I came into this, earlier I was, working as an assistant professor, and that Wow. made me realize that, I'm restricted to a particular classroom. I'm just sharing my knowledge with these 50, 60 students. And that made me realize that, I have to create a broader impact. And with that thought, I started gradually getting in touch with other scholars. In fact, I would say it vice versa, that researchers started getting in touch with me for their research things that I'm not able to understand what is the basic of a research paper. Likewise, with those smaller things, all of this started. And then gradually there have been a lot of things that came into our way, like I started doing trainings, I started doing webinars. Then I again saw that webinars and trainings were also not reaching to a larger audience. Then I started creating self-paced courses. Wow. So, if you are sitting anywhere in the world and in a different time zone also, the learning is not restricted to these walls. It is accessible 100%. any time. So this is how the PhD coach started, and now we are here discussing about AI. So at that year, the very first year, I did not have any idea that any such technology would come, that things would become so easy. I'm not talking about generating everything and relying completely on AI, but as a researcher myself, I feel that it has saved a lot of time, not just for me but for others as well. So this is gradual progression of the PhD coach into what it is something today. Great. So, as we are speaking about AI, Dr. Tripti, now, AI is evolving. Yes. Every day it is getting better. They are they're giving it some new feature every day. It's becoming more precise with the evolution process that it is going through. So, do you think these PhD scholars who are doing research, they'll be replaced one day because of this AI? Definitely not. If you ask me that PhD scholars or researchers are going to get replaced, I would say 100% no. The reason is, as we have been seeing that Claude is, launching a new model every other day. ChatGPT is launching its own models every other day. And then a lot of researchers are being really happy that, okay, now we have an upgraded model. So now the
very few things that we have been doing ourselves earlier, we might not have to do that. But you know what is happening, which is quite disheartening as well? A few days back I was reading a news article. It is indeed a research report saying that there have been thousands of research papers that have been retracted, which means earlier the papers got accepted, the papers got published in very good Q1, Q2 journals, Scopus journals, and now they have been retracted. And top 10 universities, the 6 of them are Indian universities, and their thousands of papers have been retracted now. So this is not just a question of replacing scholars or what is the future of AI, but this is a question of ethics also. That if we say that AI will replace researchers, this raises a lot of more ethical questions. And I would also like to say that the critical thinking, decision making, all of these things should always remain to a scholar, to a researcher, because they only know what my methodology should be. Correct. AI does not know your context. AI does not know what actual research gaps are there. You, as a researcher, only knows all of those things. Correct. So there is no question of replacing. But yes, I would say that researchers who are intelligently using AI are definitely going to replace those researchers who are avoiding this AI technology altogether. That is 100% true. Absolutely. Uh, there's one more question that I'm getting in my mind. I would like to ask you, because you are an expert and you're helping people in utilizing AI. So if Chat GPT, we are speaking about, so I think there are 4 versions of Chat GPT. Fourth और fifth version अभी Yes, आया है, right? yes. तो जब चैट जीपीटी और एआई बहुत कुछ कर सकता है, वो रिसर्च पेपर बना रहा है, वो रिसर्चेस कर रहा है, वो डेटा फैक्ट्स निकाल के दे रहा है, अब तो वो सोल्यूशंस भी देने लगा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं तो, राइट? सो उसको फॉर्मेट भी आता है, वो बहुत इजीली बहुत सारा डेटा एक्सेस करके आपको रिफाइन करके दे सकता है, जो करने में हमें बहुत सारा समय लगता है। तो अगर चैट जीपीटी और एआई इतना कुछ कर सकता है, तो ये जो ट्रेनिंग रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगी? The obvious reason is, let's take example of ChatGPT. आप अगर अभी ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट, आप उसको हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में दे दीजिए, वो आपको पूरा पेपर बना के दे देगा, नॉट जस्ट अ सेक्शन बट पूरा पेपर. नाउ आउट ऑफ दैट कंप्लीट पेपर आप देखेंगे कि 70 से 80% जो उसने दिया है, इट इज़ हैलुसिनेटेड कंटेंट, विच मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. मान लीजिए कि चैट जीपीटी ने आपके रिसर्च पेपर में फैक्ट्स लिख दिए कि 30% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, वो एग्जिस्ट ही नहीं और करता। वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो हैलुसिनेटेड साइटेशन भी देगा आपको. हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो डेटा फैक्ट्स आई थिंक यहीं से ले रहा है, इंटरनेट से। वेरी नॉर्मल विद चैट जीपीटी, इट इज़ वेरी नॉर्मल कि वो आपको 70 से 80% इंफॉर्मेशन हैलुसिनेटेड देगा. Oh my God. एंड नॉट जस्ट दैट, बट उसके साथ वो आपको सोर्स भी देगा कि लेट्स से दिस सोर्स इज कमिंग फ्रॉम लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसका करेक्ट सोर्स भी नहीं निकलेगा. तो इस तरह से रिसर्च में ऑथर्स के पेपर्स को वो साइट करता है, तो वो ऑथर का नाम भी अलग हो सकता है, सरनेम भी अलग हो सकता है, कंप्लीट जो रेफरेंस है इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो जो रेफरेंस आपको दे रहा है उसका टाइटल कहीं और से आ रहा होगा, उसका सोर्स पब्लिकेशन कहीं और से आ रहा होगा, उसका ऑथर का नाम, सरनेम. सो इट इज़ एट दैट लेवल ऑफ हैलुसिनेशन इफ आई टॉक अबाउट चैट जीपीटी. दैट्स वाई यूनिवर्सिटीज़ आर बाउंड टू ट्रेन देयर रिसर्चर्स, क्योंकि एआई के आने के बाद तो अब और प्रॉब्लम हो गया है. अर्लियर वी वर वेरी हैप्पी कि चलो एआई आया है, हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा, बट यहाँ पर ट्रेनिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एआई को यूज़ कैसे करना है. करेक्ट. एआई को यूज़ करना है ये तो सबको समझ में आ गया, बट कैसे उसको करेक्टली यूज़ करना है, अब उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई आई ऑल्सो टेक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो प्रोफेसर्स, नॉट जस्ट in the age group of 40-45 years, but even senior professors, उनको भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको कैसे एआई को यूज़ करना है. तो यहीं पर ट्रेनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे तो इस तरह के जो हैलुसिनेशन वाले केसेस हैं बढ़ते जाएंगे, एंड देन यू कैन इमेजिन कि क्या होगा
इस रिसर्च कम्युनिटी का, क्योंकि हमारे पास ऐसे पेपर्स होंगे जिसमें ऐसे फैक्ट्स होंगे जो जो एग्जिस्ट एग्जिस्ट ही ही नहीं नहीं करते, करते, हाँ। तो रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं रह करेक्ट जाएगा। करेक्ट करेक्ट एंड आई थिंक एक और चीज़ है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं सही बोल रही हूँ, चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन ले रहा है जो भी अवेलेबल है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन वो है जिस पे पहले रिसर्च हो चुका है, रिसर्चर मेनी टाइम कुछ नया खोज रहा है, तो वो तो आई थिंक ये जीपीटी और एआई यहाँ है ही नहीं, हाँ, यू नो समथिंग दैट यू आर बिल्डिंग ऑन ग्राउंड, यस, जो किसी ने बनाया ही नहीं है, तो हाउ दे कैन यू नो स्पीक अबाउट इट, उनके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन डेटा फैक्ट्स है ही नहीं, सो आई थिंक ये तो एक मतलब इट इज एब्सोल्युटली इररिप्लेसेबल बिकॉज एवरी टाइम यू आर रिसर्चिंग ऑन समथिंग न्यू विच इज नॉट अवेलेबल देयर, सो Correct. गलती आजकल पीएचडी स्कॉलर्स ये कर रहे हैं दैट दे आर यूटिलाइजिंग चैट जीपीटी आई, कितना खतरनाक है, सोचिए 70% डेटा अगर सही नहीं है, हाँ, तो आप का पूरा मतलब यू नो रिसर्च तो सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स मानते हैं मीडिया से भी ऊपर कि उस रिसर्च Exactly. पेपर में ऐसा निकला था, Exactly. तो ये तो बिल्कुल सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, इंफॉर्मेशन हाँ, के सिस्टम का जो बेसिक फाउंडेशन है वो ही खराब हो जाएगा, बिकॉज रिसर्च से ही मुझे लगता है कि एजुकेशन पूरा स्टार्ट होता है, Exactly. राइट। सो Yes. एक और सवाल है, बिकॉज यू टोल्ड मी कि 10,000 लोगों के साथ आपने ऑलरेडी काम किया है, कोई एक पैटर्न जो आपने इन रिसर्च स्कॉलर्स में ऑब्जर्व किया है, और कैसे आप उस पैटर्न को, वो राइट है या रॉन्ग है, कैसे एनालाइज करती है और कैसे हेल्प करती है उनको आगे बढ़ने में इस जर्नी में? सो एक बहुत कॉमन पैटर्न है विच आई कॉल एज साइलेंट ओवरवेल्म। अभी साइलेंट ओवरवेल्म क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे रिसर्चर्स डे टू डे, अगर आप कभी किसी यूनिवर्सिटी गए या आपने कुछ कॉन्फ्रेंसेस गए, आपने वहाँ देखा होगा दे लुक वेरी हैप्पी, दे पब्लिश अ लॉट ऑफ पेपर्स एज वेल, दे आर गुड प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, तो यू नो दे आर डूइंग एवरीथिंग गुड। बट क्या होता है ना कि जो रिसर्चर्स बहुत अच्छा भी कर रहे होते हैं ना, सडनली उनको ये थॉट्स आने लग जाते हैं कि एम आई डूइंग इनफ, क्या मैं और पेपर्स पब्लिश करूं तो मेरी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी, Okay. या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इनफ पब्लिकेशन कर रही हूं या नहीं, या फिर कुछ रिसर्चर्स को लगता है कि मैंने जस्ट पीएचडी ज्वाइन किया है, क्या मैं पब्लिकेशन और कर पाऊंगी या नहीं, क्या मैं अपने रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइमली अचीव कर डाउट्स पाऊंगा होते या हैं। नहीं। तो इस तरह की ना बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं रिसर्चर्स में वंस दे आर इनटू द सिस्टम, एंड इवन इफ दे आर ऑलरेडी इन द सिस्टम। तो ये जो साइलेंट ओवरवेल्म है, जिसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, उनका सेल्फ डाउट ऑफ कोर्स, अनटाइमली डिसीजन मेकिंग, या नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड थिंग्स, या फिर लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट, लैक ऑफ कोलैबोरेशंस, बिकॉज रिसर्च में कोलैबोरेशंस आल्सो प्ले अ Yes, वेरी absolutely. इंपॉर्टेंट रोल। तो इन सब के कारण ना ये जो साइलेंट ओवरवेल्म वाला पैटर्न है, ये बहुत कॉमन है in every kind of researcher, और because of this particular pattern only मैंने ये डिसाइड किया था वे बैक यू नो बिफोर 5-6 years कि आई हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी एंड आई हैव टू बी अ मेंटोर फॉर ऑल ऑफ दोज रिसर्चर्स जिनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, जो स्टक हो गए, जो इस पैटर्न में ट्रैप हो गए। तो उनसे, उनके लिए ही ये सारे टेम्पलेट्स हैं, उनके लिए ही ये कोर्सेज हैं, और कई सारे रिसर्चर्स को समझ भी आ जाता है कि आई एम ट्रैप्ड एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो उनके लिए इस तरह के कोर्सेज हैं कि वो कभी भी किसी भी टाइम पर बैठ कर, जब उन्हें टाइम मिला है, बिकॉज यू नो कि रिसर्चर्स ऑलरेडी बहुत बिजी होते हैं, कई सारे उनके पास काम होते हैं, तो ये सबको, इन सारे चैलेंजेस को, इन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए आई हैव कम अप विद दीज काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, ताकि उनको एक सपोर्ट मिल पाए। देन Wow. देयर इज कम्युनिटी, कि आज अगर किसी का पेपर रिजेक्ट हुआ है तो वो डिप्रेस्ड फील ना करें, वो ये फील ना करें कि यार वाई माई पेपर हैज़ गॉट रिजेक्टेड। जब वो कम्युनिटी में होंगे और दूसरे लोग वहाँ पर होंगे तो वो एटलीस्ट दे कैन शेयर, और जब दूसरे रिसर्चर्स भी बोलेंगे कि नो दैट इज़ ओके, इट इज़ वेरी कॉमन, बट अब आगे आपको क्या करना है वो भी आपको वहाँ सजेशंस मिल Wow. सकते हैं। एज अ मेंटोर आई ऑल्सो सजेस्ट देम। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम जिसको हम ग्रेजुअली और ज़्यादा अच्छा बनाते जा रहे हैं। Wonderful. तो दिस इज़ व्हाट is my a very very small step that I am taking Great. for all of them to deal with this. आपके लिए हो सकता है कि स्मॉल स्टेप हो, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है, बिकॉज स्कॉलर्स हो गए जो मेरे इर्द गिर्द रहे हैं, डाउट्स बहुत होते हैं,
देयर इज नो वन टू टेल देम व्हाट नीड्स टू बी डन, Yes. जिसकी वजह से प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने कम्युनिटी दी है, मान लीजिए 5-10 लोग एक ही डिपार्टमेंट के हैं, राइट, सो इट बिकम्स ईजी, एक जूनियर को एक सीनियर मिल गया, राइट। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े होंगे जो यूनिवर्सिटीज़ रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर जो ओपनली कर रहे हैं, राइट। अब उनके पास नहीं है कोई रिसोर्स, तो वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल होता होगा लोगों के लिए। Yes. मैंने देखा है कि 20-22 रिजेक्शंस लोगों के होते हैं, बट जब कोई सीनियर मिल जाता है ना तो वो बता देता है आप यहाँ ये गलती कर सकते हो, इसको आपने मुझे बताया भी कि आपने तो प्रॉपर टेम्पलेट्स आप सिखाते हो लोगों को कि भाई लिटरेचर रिव्यू करना है तो कैसे करना है, रिसर्च करना है तो कैसे करना है, उसको कैसे डाला जाएगा उस प्रोसेस में, तो आई थिंक वो रिजेक्शंस भी मिनिमाइज होते होंगे, राइट। Definitely. एक और क्वेश्चन है, बिकॉज इतने सालों से आप काम कर रहे हो, देर आर लॉट ऑफ, देखिए यूनिवर्सिटीज़ ओपनली बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हैं, राइट। Yes. ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस हैं या ऐसे कौन से बिटर ट्रुथ्स हैं जो रिसर्चर्स को प्रोसेस में आने के बाद पता चलते हैं और यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं ओपन करती उनके सामने? I would say that there is just one very uncomfortable truth about academia, and I am saying this with all the respect because that's where I also come from. करेक्ट, 100%। But this has to be the number of publications. See, मैंने PhD इसलिए ज्वाइन किया because I was very interested in exploring something, कि मुझ में वो ज़ील थी, वो enthusiasm था कि नहीं मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, और तभी मैं इसमें डीप डाइव कर पाऊँगी जब मैं PhD ज्वाइन कर लूँ। तो वो एक एस्पेक्ट हो गया। नाउ व्हेन आई एम एडमिटेड इन अ यूनिवर्सिटी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे पेपर पब्लिकेशन करना है। तो मेरी जो ज़ील थी, मेरा जो एक पैशन था रिसर्च के टुवर्ड्स, वो धीरे धीरे ना थोड़ा सा डिक्लाइन होने लगता है क्योंकि मेरा फोकस डाइवर्ट हो गया। नाउ क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि यू हैव टू लेट्स से पब्लिश 2 पेपर्स या 3 पेपर्स, तो वो जो पब्लिकेशन का प्रेशर है ना, इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, और वो ही है जो रिसर्चर्स को थोड़ा सा लोनली भी बना हाँ, देता correct. है, और रिसर्चर्स को ये भी फील होता है कि नाउ जिस पैशन से मैं इस रिसर्च को करने वाली थी, नाउ आई हैव टू कीप दैट असाइड, और मुझे पहले फोकस करना होगा कि फिगर आउट करना होगा कि मैं कैसे पब्लिकेशन करूं। एंड इसमें यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस की भी गलती नहीं है, बिकॉज हमारा सिस्टम इस तरह का है कि एवरीथिंग इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स होती है वो पब्लिकेशन पर हाँ, डिपेंड करती है। कितने ज़्यादा पेपर्स हैं। एग्जैक्टली कितने आपके पास पेटेंट्स हैं, कितने आपके पेपर्स पब्लिश हुए हैं, कितने प्रोफेसर्स ने, कितने रिसर्चर्स ने आपके यूनिवर्सिटी से पेपर्स पब्लिश करें, तो एवरीथिंग इज इन मैट्रिक्स। करेक्ट, और रिसर्चर्स उसका पार्ट बन जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सारा बर्डन रिसर्चर्स पर होता है। 100%। तो ये एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो हमें बाद में पता चलता है। मुझे भी बाद में पता चला था। आई वॉज ऑल्सो अ स्कॉलर वंस, तो आई वॉज ऑल्सो वेरी एंथुसियास्टिक, बट जब मैं सिस्टम में आई मुझे पता चला कि जब तक पेपर पब्लिश नहीं होगा आई विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। तो इट was something that also made me really uncomfortable, but then it is a part of the system. करेक्ट, एब्सोल्युटली। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैं देख रही हूँ, दे आर ऑल्सो इंसेंटिवाइजिंग देयर स्कॉलर्स, दे आर पेइंग देम, गिविंग देम फैसिलिटी, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं, बट स्टिल इन स्कॉलर्स के पेपर्स पब्लिकेशंस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। व्हाट इज़ द रियल गैप? कहाँ पर ये लोग स्टक हो जाते हैं? मुझे लग रहा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दे आर एब्सोल्युटली डूइंग वंडरफुल थिंग इन द पाथ ऑफ मोटिवेशन। वो बहुत अच्छा मोटिवेट कर पा रहे हैं उनके स्कॉलर्स को। मेनी यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग सम रिवॉर्ड्स इन कैश ऑल्सो एंड इन अदर वे ऑल्सो, कि scholars come up with novelty, scholars come up with publications, patents, etc. But जो मैंने रियलाइज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, विच इज़ कि जो रिसर्चर्स होते हैं ना, दे आर नॉट जस्ट डूइंग रिसर्च, उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो काम करने के बाद जो वो फाइनली फ्री होते हैं कि चलो लेट्स डू समथिंग फॉर दिस रिसर्च पेपर, तब तक वो जो क्वालिटी आना चाहिए वो नहीं आती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी टायर्ड। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं
प्रोफेसर्स का या असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्जाम्पल लूँ, सो इन द होल डे दे हैव टू टीच स्टूडेंट्स, उनको पीपीटीज बनाने पड़ते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव भी काफ़ी सारे काम करने होते हैं। और उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी उनसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि नाउ यू हैव टू डू गुड रिसर्च ऑल्सो, तो उनके पास टाइम नहीं है। दे आर मोटिवेटेड, उनको दिख भी रहा है कि आई हैव अ नॉवेल्टी और मुझे ये रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं इफ़ आई प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च, बट उनके पास टाइम नहीं है। तो मेजर इज़ दिस इकोसिस्टम, द लैक ऑफ इकोसिस्टम। तो यूनिवर्सिटीज़ के जो इकोसिस्टम्स होने चाहिए, इट शुड बी इन सच अ वे कि उन्हें कुछ टाइम रिसर्च के लिए मिले, डेडिकेटेड टाइम मिले, ताकि वो बाकी सब चीज़ों को साइड में रखकर ये सोच पाए कि हाँ मुझे रिसर्च करनी है, एंड देन आई थिंक वी विल बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स। एब्सोल्युटली। रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ पीएचडी स्कॉलर्स या प्रोफेसर्स के लिए अच्छा है रिसर्च करना, रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराना पब्लिकेशंस में, या फिर इज़ इट गुड फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए भी इट इज़ गुड? आई विल से रिसर्च इज़ गुड फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोग इम्प्लिसिटली रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है। करेक्ट। इफ़ आई हैव टू टेक एन एग्जाम्पल कि एक बिजनेस ओनर है, नाउ दे वांट टू अंडरस्टैंड देयर मार्केट, तो वो क्या करते हैं, दे डू रिसर्च मार्केट कि रिसर्च। यू नो मेरी ऑडियंस क्या हो सकती करेक्ट। है, व्हाट इज़ देयर बाइंग पैटर्न्स। इफ़ आई टॉक अबाउट डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू, कोई नया डोज या एनीथिंग दैट इज़ गुड फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। देन इफ़ आई टॉक अबाउट इंजीनियर्स, ऑफ कोर्स इफ दे आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट या वो किसी प्रोडक्ट पर वर्क कर रहे हैं, तो रिसर्च इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। बट आई हैव सीन दिस वेरी न्यू पैटर्न कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स, दे हैव बिकम सो क्यूरियस, यू वुड नॉट बिलीव कि दे हैव कम अप विथ वेरी गुड आइडियाज़, एंड दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि अगर मैंने अभी अपना रिसर्च प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लिया एंड अभी मैंने अगर बहुत अच्छे से रिसर्च कर लिया एंड बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर लिए, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर मी टू get into foreign universities. तो research is not restricted to just PhDs or professors or scientists. Now, different kinds of people are doing different kinds of research because they have seen कि research is now beneficial in future करेक्ट, aspects. एब्सोल्युटली। अभी एआई भी आ गया है रिसर्च में भी, आप भी एआई एक्सपर्ट हो, सिखाते हो लोगों को। आपको लगता है कि एआई एक्चुअली में हेल्प कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि एआई लोगों को ज़्यादा डिपेंडेंट बना रहा है, इंक्लूडिंग हमारी और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है? I think it is on perception and how you use it. Let's say कि हम दोनों researchers हैं. Now I'm thinking कि यार I have ChatGPT या I have Gemini and I will just give it a topic और मुझे तो पूरा पेपर मिल जाएगा. Why would I spend time? एंड आप हो जिसको लगता है कि नहीं, मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, मैंने जो सोचा है, वो तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है मेरे रिसर्च पेपर में, इन एनी वे आई कैन नॉट रिप्लेस दैट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप एआई को इस तरह से यूज़ करोगे कि इट इज़ जस्ट सेविंग यू टाइम, Correct. इट इज़ नॉट रिप्लेसिंग यू और योर डिसीजन मेकिंग। तो वहाँ पर आप एआई को पेपर्स कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप समरीज के लिए यूज़ कर सकते हो, आप डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। कई सारे यूज़ केसेस हैं। और वहीं मैं क्या सोच रही हूँ कि मुझे तो इतना कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ एआई को प्रॉम्प्ट देना है और मुझे अपना पेपर चाहिए। तो मुझे उसने लेज़ी बना दिया। लेकिन आपके लिए क्या किया, आपके लिए एआई ने वैल्यू ऐड किया। करेक्ट। तो इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन एंड वी हैव बोथ ऑफ द काइंड्स ऑफ रिसर्चर्स कि कुछ पूरी तरह से डिपेंडेंट हो रहे हैं क्योंकि उनको लैक ऑफ नॉलेज है, उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मैं एआई को कैसे यूज़ करूँ। उनको सिर्फ ये पता है कि मुझे प्रॉम्प्ट देना है और मुझे ये चाहिए। और आपके जैसे रिसर्चर्स को ये पता है कि मुझे एआई को सिर्फ एज अ हेल्पर यूज़ करना है, कम्प्लीटली उस पर रिलाई नहीं करना है। एब्सोल्युटली। अब हम एआई पर बात कर ही रहे हैं, तो एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन आया जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है अगले 2 साल या 5 साल जिस तरह का डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन आप एआई का देख रहे हो, कि इज़ इट गोइंग टू एक्चुअली डेमोक्रेटाइज द रिसर्च का जो डिपार्टमेंट है या फिर जो आपके स्कॉलर्स के लिए, या फिर ये अकेडमिया चीटिंग की तरफ भी लेकर जाएगा लोगों को?
both again, kyunki again it is all about perception. Now, if we talk about a lot of good universities around the world, currently what is their pattern? They give assessments to students, and those assessments can easily be decoded with the help of AI. वो पूरे assessments को बहुत अच्छे से कर सकता है, हाँ, और समराइज कर देता है, पैटर्न्स दे देता है, पूरा बहुत सारे। बना भी देता है, करेक्ट है ना? करेक्ट। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? चीटिंग हो रही है, विच वी डू नॉट वॉन्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन ऐसी नहीं चाहेंगे जो पूरा चीटिंग करके डिग्री ले रही है। करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो चीटिंग वाला केस है ना, इसके लिए यूनिवर्सिटी now, because universities are at crossroads, उनको एक डिसीजन लेना होगा कि दे शुड चेंज देयर पैटर्न, कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को वो थोड़ा प्रमोट करें, वो इस तरह की लर्निंग को प्रमोट करें जहाँ वो वाइवास के थ्रू स्टूडेंट्स को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को Yes. शो करने का Wow. अपॉर्चुनिटी दें। तो वहाँ वी वुड से कि इट इज़ डेमोक्रेटाइजिंग, क्योंकि वहाँ क्या होगा, स्टूडेंट्स एआई को यूज़ करेंगे टू गेट न्यू आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो if we are using AI that way, it is absolutely good, but again if we are getting fully dependent तो वो cheating ही है। and a lot of researchers, that is why these reports are coming every day कि research papers retract हो ही रहे हैं, researchers को पता नहीं है कि उनके research में क्या लिखा है, है। गलत facts, figures, Correct, हाँ। hallucinations, all of these things are increasing to a very great extent, which is cheating, and it is raising question not just on the credibility of that particular researcher but the universities with which they are affiliated. So यहाँ पर universities and organizations have to play a very big role. They should train, they should make others understand that AI has a red line and you should not cross that. Correct. One more question here, अगर कोई भी आपको सुन रहे हैं and they're starting their PhD का journey, what is the most underrated skill जो उनके अंदर होनी चाहिए? It definitely has to be academic writing. I know many of the viewers might be expecting कि मैं ये बोलूँगी कि you should learn AI, or you should learn a very good foundation of research. मैं वही expect कर रही थी। Yes, but it is academic writing. You know why? I have seen brilliant researchers waiting for 1 year, 2 years, just because they do not know how to present their things. Correct. Just because they do not know how to write these things in such a way that ultimately your goal is to get your thesis accepted, Correct. to get your paper accepted. And it is not about grammar, it is not about writing in correct English, it is more about how you are presenting your ideas. So focus on academic writing is important, and I have seen researchers who are focusing on academic writing from the very first year. They are on time, they are doing good. But researchers who think that I will collect the data, I will analyze the data, and later I will see how am I going to present it, then it is creating a problem for them, because they are taking writing for granted, and Correct. it is a skill, you can learn it. Absolutely. Yeah. Tripti ma'am, degree versus skill, what is going to be the most important thing in future? None of the two. See, degree, we all know it is very important, but if you think that the degree that I have taken today at the age of 25 years, if you feel that it will be relevant after 10 years or 15 years, then we are in a myth. Because the way in which technology is rapidly evolving, our degrees are not evolving. Correct. And if I say skill only, then things do not depend only on skills. You need to show that you have formally went to an organization and you have got this degree. So the major thing is learning. If you are continuously learning, and again not just learning but unlearning and relearning. Yes. So when the time is changing, let's say after 5 years any other technology is evolving and it is coming, you should be open to learn that, you should be adaptive, and then only your degree and your skill will make sense. Absolutely, absolutely. अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्होंने ना अलग अलग कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जैसे ही AI आया तुरंत उसको अडॉप्ट कर लिया, अपने कोर्सेज में
लगा लिया, कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे बहुत मैंने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने सिलेबस में पर्सनल हाइजीन और ये Yes. सारी चीज़ें डाली। एवोल्यूशन ही है, उन्हें लग रहा है कि भाई अब ये नीड ऑफ द आवर है तो हमको करना पड़ेगा। नोएडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मैं देखती हूँ कि उन्होंने अपने अलग अलग, मतलब सीएस में तो मुझे लग ही रहा था एआई इंटीग्रेशन होगा, अदर कोर्सेज में वोकेशनल स्टडीज में एआई इंटीग्रेशन किया है। तो Yes. डेफिनेटली इवॉल्व करिए। बट अगर मैं ओवरऑल क्यूमुलेटिव अप्रोच की बात करूं, डू यू थिंक इंडिया की यूनिवर्सिटीज एआई रिवॉल्यूशन के लिए प्रिपेयर्ड है, या फिर वो अभी भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आउटडेटेड अप्रोच अपना रही हैं? See, I would not say maximum universities outdated approach अपना रही हैं, because I keep going to a lot of universities, Yes. and now I can see that they have become proactive कि AI आया है तो we have to train everyone. They are not just training their students, as you said कि वो courses launch कर देते हैं, which is good for students, but they are also bringing changes in their infrastructure and their faculty as well. Correct. तो they are very much open, but they are still in the learning phase, I would say, कि gradually adopt कर रही हैं, because India में altogether the ecosystem, the infrastructure of maximum universities is such that it is running through a traditional mode of Yes. operation. Yes. तो वो upgrade हो रहा है. I can see that in almost every university Wow. where I go. तो yes, universities are getting ready for a very bright and new future that AI is bringing. और ये सिर्फ आईआईटीज और बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं है, these are small universities also. Exactly, they are small universities also where these changes are now being adopted. ग्रेट ग्रेट। जब आपने स्टार्ट किया था द पीएचडी कोच, कब स्टार्ट किया था, विच ईयर? It was during 17-18. 17-18, तो आई Yes. थिंक इंटरनेट का तो रिवॉल्यूशन देख ही लिया था Right. ऑलमोस्ट, इट वाज इन द मिड स्टेज, राइट? एआई का शायद नहीं पता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, Definitely बट इंटरनेट हम सबके हाथ में आ गया था। जब आपने इसको स्टार्ट किया द पीएचडी कोच को, इतने स्कॉलर्स हैं इंडिया में, जितने भी बैचलर्स मास्टर्स करते हैं किसी भी डोमेन में, दे बिकम अ स्कॉलर। अल्टीमेट जो एम है, विजन है, वो वही है वो। बट मार्केट जो है ये बहुत जल्दी स्विच और शिफ्ट करता है हमारे इंडिया का 2014-15 के बाद जो मैं देख रही हूँ। व्हाट वाज द बिगेस्ट रिस्क यू फाउंड, या आपको लगा कि मतलब दिस कैन बी अ रिस्की सिचुएशन फॉर मी? So see, my journey started way back. मतलब PhD coach बहुत बाद में आया, formally बहुत बाद में आया, because when I started, I just had one thing कि I want to create an impact. और उसको मैं informally जिस भी तरीके से मैं कर सकती थी, I was doing that. And वो करते करते, because I had to leave my job as well, like I said, I was working as an assistant professor. तो वो मेरा background था, and then you know I came from a Hindi medium background, from a very small town. नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। So जब मुझे ये लगा कि मुझे द पीएचडी कोच को फॉर्मली स्टार्ट करना है, जब मैंने ये सब कुछ छोड़ा, एंड देन इन द सेम ईयर आई गॉट मैरिड ऑल्सो, तो वो एक ऑल टुगेदर इन द लाइफ ऑफ अ वुमेन एक ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। तो वो टाइम पर आई वॉज थिंकिंग कि आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक, क्योंकि एक थॉट जो मेरे माइंड में था कि अ स्टेबल जॉब, आई लेफ्ट दैट जॉब, और अब मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि आई विल बी एबल टू क्रिएट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल कम्युनिटी। सीइंग माई बैकग्राउंड, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क था कि सब कुछ छोड़ दिया है, अब क्या होगा, कौन मेरे कोर्सेज को देखना चाहेगा, या कौन मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहेगा। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर ऑलवेज देयर इन माई माइंड, बट you always have that support coming from someone, and in my case that was my husband, कि उन्होंने मुझे हमेशा पहले ही विजुअलाइज करवा दिया कि you see there are already a lot of scholars waiting for you, कि उन्हें mentorship चाहिए, उन्हें guidance चाहिए। तो मैं PhD कोच को एक बहुत फॉर्मल शेप दे पाई in the very same year. Wow. So yeah, keeping aside all the risks, I just focused कि हाँ ठीक है, I will have something good because there is someone who is so confident about this. अब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, सर यहाँ बैक कैमरा बैठे हुए इन द स्टूडियो, सर बैठे हैं, हमारा पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, इन ऑफिस डिस्कशन किया,
अभी he left his job also Yes. just to support his wife and this venture, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. It's worth working on such a great initiative, because ये सिर्फ एक business नहीं है, profit बनाने का तरीका नहीं है, वो तो डेफिनेटली रेवेन्यू तो आएगा ही, बट यू आर एक्चुअली हेल्पिंग दोज पीपल हु आर कंफ्यूज, क्योंकि मास्टर्स तक ये सिखाते ही नहीं है कि डॉक्टरेट में आप काम करोगे कैसे. वो इट इज़ वेरी लेस अबाउट द एकेडमिक्स, मोर अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स. तो हमें लगता है कि सिर्फ ऑन ग्राउंड ही काम करना है, पर मेन काम तो आपने जो 4 साल किया है उसको आप वो थीसिस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, हाउ इट इज लुकिंग, हाउ आर यू एबल टू पिच इट टू योर एडवाइजर, आगे कैसे उसको लेकर जाओगे, पब्लिश कैसे करोगे, वो मेन चीज होती है. वो कोई सिखाता ही नहीं है. Exactly. मास्टर्स तक तो हमें बुक्स मिलती हैं, हम क्लासेस करते हैं, हमारे एग्जाम्स होते हैं, थोड़े बहुत रिसर्च पेपर होते हैं, खत्म. That is 100% true. इतना बड़ा ट्रांजिशन होता है दैट वी नॉट. तो आप जैसे लोग जब आते हैं और ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस डेफिनेटली तृप्ति मैम आपने भी फेस किए हो. इसीलिए I came up with this. करेक्ट. तो ये बहुत हेल्पफुल होगा. अभी तक किस किस जगह से लोग आपसे जुड़े हैं, मतलब यू नो आर दे ओनली इंडियन या फिर बाहर से भी लोग आपके साथ जुड़े हैं? I would say that I have 30% Indian researchers. The 70% is from all the other Oh, countries. wow. So it's US, it's UK, European countries, Middle East. They are so enthusiastic about research. Wonderful. And I would never miss Southeast Asia, because there people have a different kind of zeal for research. Great. So I have scholars from all of these major countries. वंडरफुल. यानी आप भारत को ऑलरेडी ग्लोबल पेडेस्टल पर ले जा चुकी हैं. 30% इंडिया और 70% बाहर के लोग हैं. Yes. व्हाट इज द डिफरेंस यू फाइंड बिटवीन बोथ द ऑडियंस? यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस अप्रोच के साथ करते हैं काम, और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस अप्रोच के साथ करते So I would say it is not a comparison between India and all the other countries from where I got these scholars. Every country has a different approach. And a different ecosystem. In that case, I would like to highlight, if we talk about the US, the research ecosystem there is very strong. हैं? वाओ. You get a dedicated mentor and you get all the equipments. Wonderful. And everything that you need for your research. The university gives this. The university gives you everything. But in India, you will have to figure it out. Like, even if you have a mentor, you will have to go, you will have to take follow-ups. This is a system. I'm not criticizing, but this is a system that you will have to, get in touch that, I have done this so far, now what should I do? But in US, it is like they will send you emails that please share your progress with us. Wow. And so this is just one example. And then if I talk about, let's say, China. So China has also seen retractions in 24 and 25, even more than India. But what they immediately did was to protect the research community, to protect the rigor, to protect integrity. They took very strict steps such that no researcher would ever try to go beyond ethical boundaries. wow. So every country has a different thing, and every research scholar come with a different set of practices that they are following. Absolutely. अब there is one more question which is experience based. बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे जो रिसर्च कर रहे हैं, जिनके आसपास लोग कर रहे हैं. प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बहुत पेशेंस चाहिए, बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है. बार बार आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, फेल करते हो, सालों का समय लगता है. एक सब्जेक्ट के भी, एक पोर्शन के भी एक बहुत छोटे हिस्से पर आप रिसर्च करते हो. तो नाउ इस पूरे प्रोसेस में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, बर्नआउट्स बहुत होते हैं. आपके पास तो दोनों तरह के लोग आते होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स है, काम भी कर रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं. कौन लोग ज़्यादा रिसर्च में बर्नआउट फील करते हैं? अगर मैं किसी का एक साइड लेती हूँ तो इट वुड बी इनजस्टिस. सो बर्नआउट तो सब फेस कर रहे हैं. Everyone is facing burnout. But if I talk about, let's say, people who are from corporates, तो उनको पता होता है कि these are my targets. If I achieve these targets, I will get promotion, and this is my timeline broadly. But researchers के साथ पता है बहुत ironic situation होती है.
एक तो सबसे पहले उनके फ्रेंड्स और फैमिली को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं. अगर आप करेक्ट. इंजीनियर डॉक्टर हो, लोगों को पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, बट रिसर्चर्स का काम तो किसी को समझ भी नहीं आता कि बहुत लोनली रिसर्च भी होते हैं बहुत ये. लोनली भी होते हैं, पता ही नहीं चलता कि आप किस प्रोसेस में हो, कब आप क्या करने वाले हो. तो फर्स्ट थिंग इज दैट दिस सेक्लूजन, कि किसी को पता ही नहीं होना कि एज अ रिसर्चर आप क्या कर रहे हो. एंड सेकेंडली रिसर्चर्स के साथ कैसा होता है कि आज हम चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, वी डू नॉट नो कि ये चैप्टर कब ख़त्म होगा, या हम एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, वी डू नॉट नो कि ये कब पब्लिश होगा. हमें कोई टाइमलाइन नहीं पता होती, हमारे मेंटोर हमें कब रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ भी एक रिसर्च स्कॉलर को कुछ पता ही नहीं आइडिया नहीं होता. होता. करेक्ट. तो इसके कारण ना वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट फेस करते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है. यस. रिसर्च वर्क करना यस. है. करेक्ट. और ये अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं उन लोगों को मेंटली भी बहुत परेशान करती है. वो जैसे लोनलीनेस की हमने बात की, अभी आप किसी ऐसे सब्जेक्ट पे घर पे बात नहीं कर सकते. इफ़ यू आर डॉक्टर यू एटलीस्ट कैन स्पीक अबाउट द पेशेंट. अभी रिसर्च में क्या बात करोगे कि आज मैंने ये Exactly. एक्सपेरिमेंट किया, ये किसी को फेल हो नहीं गया. पता. दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग. या Exactly. सो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे आपके पास तो इतने स्टूडेंट हैं, आप तो उनको मेंटली भी काउंसिल करते होगे, गाइड करते होगे. तो आप कैसे इनको काउंसिल करते हो, क्या सजेशन देते हो आप कि इस पूरे प्रोसेस में थ्रू आउट दिस वो मोटिवेशन कैसे बिल्ड रखें, मेंटली स्टेबल कैसे रहे? बिकॉज देखिए ये पूरा काम फिजिकल तो है नहीं, मेंटल ही है. इफ़ यू आर नॉट मेंटली साउंड, इमोशनली साउंड, वो आपके रिसर्च में भी दिखेगा. सो हाउ डू यू गाइड दीज पीपल? I always say one thing to all of my scholars, कि have a proper system for your research. Correct. If you do not have a system, if you are randomly doing anything that you want to do based on the opinion given to you by your peers or your seniors, Correct. then you are not going anywhere. You will have to understand your objectives, you will have to decide your timeline, and once you have decided it, you must have a system that okay, this is the framework or this is the system that I am going to follow for my entire research, and then you will immediately see the difference. अभी प्रॉब्लम सिस्टम का ही है, बिकॉज करना सभी को सेम चीज़ है, सभी को रिसर्च पेपर करना है, सभी को थीसिस करना है, बट दोज स्कॉलर्स who are proceeding forward with a proper system, with a proper framework, they are the ones who are able to make it through. तो मैं यही Absolutely. बस कहती हूँ कि have a system for yourself. और वो सिस्टम द पीएचडी कोच में हम देते हैं, देते प्रोवाइड भी करते हैं, हैं. राइट. इफ यू आर क्लूलेस, वी हैव अ सिस्टम, वी हैव अ वेरी सिंपल फ्रेमवर्क. ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है विच यू फील कि मैं ऑलरेडी एक पीएचडी तो कर ही रही हूँ, अभी एक अगर सिस्टम और मुझे लेना होगा तो इट विल बी अ टू मच ऑफ अ थिंग. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ वेरी सिंपल सिस्टम जो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करना है इन ऑल योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, वो सिस्टम आपको उसमें हेल्प करता है. एंड वन ऑफ सच सिस्टम इज आर रैपिड फ्रेमवर्क. You would not believe, but more than 10,000 scholars have already applied this rapid framework, Wow. which is for all the stages of research. And it is equally useful whether you are writing thesis or your research paper. So you just use this system and you are done. सो एक और क्वेश्चन है इसमें. मान लीजिए 10,000 लोगों ने आपका सिस्टम यूटिलाइज किया फॉर कंप्लीटिंग देयर थीसिस और समथिंग, राइट? या रिसर्च पेपर के. अभी सारे रिसर्च पेपर एक जैसे नहीं दिखेंगे. No, no. This system is not domain specific. Okay. This system is how foundation of research should be. Okay. And this is a step by step system. So as a researcher, someone would understand what I am saying, that let's say the very first thing in a research is identification of novel gap. So this system helps you that okay, this is how I'm going to identify a novel gap. Then next step, that now I have gap, now I have to do my literature review. So Okay. this is how I would do literature review, and this model will help you get more than 200-300 relevant research papers. Yes, exactly. Yes, almost every subject. Okay. Because as I said, कि this is not domain specific.
दिस इज कोर ऑफ रिसर्च कि आप किसी भी डोमेन से हैं, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने ही हैं, नोइंगली या अननोइंगली. अगर आप नोइंगली कर रहे हो तो इट विल सेव यू फ्रॉम बर्नआउट, इट विल सेव योर टाइम एज वेल, बट आपको स्टेप्स तो वही फॉलो करने हैं. जस्ट दैट अ सिस्टम मेक्स इट ईजियर, एंड दैट टू इफ दैट सिस्टम इज AI enabled. करेक्ट. तो दैट इज टाइम सेविंग. ग्रेट. सो तृप्ति मैम, लेट सपोज कोई स्कॉलर आज आपको सुन रहा है एंड दे बिकम अ मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी एंड दे साइन अप विद द प्रोसेस, जो भी है आपसे जुड़ते हैं, उनको कितना काम करना है, क्या उनको करना है, और कहाँ हम उन्हें हेल्प करेंगे? लेट्स सपोज स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपने बताया कि तुषार का रिसर्च का काम, ग्राउंड वर्क आपको करना है, ये आपको करना है, एंड दीज आर द 4-5 थिंग्स जिसके लिए मैं आपको सिस्टम प्रोवाइड करूंगी. सो इट इज लाइक काम तो पूरा रिसर्चर को ही करना है. But the thing is, with this system, what you get is you get a mentor. Now, let's say you have a completed research paper, but you are not sure that whether this research paper is as per the publication standards or not. Okay. So, in mentorship, what I do is I go through their research paper, I check each and everything, then I let them know that these are the things that you still need to improve. Okay. For example, if someone is doing thesis, so I can give them a blueprint that okay, this is how you have to proceed further, because that is more than enough. At the very first place, they altogether do not have a blueprint to proceed further. Correct. So if you know these are the chapters and these are the things that I need to cover, and this is what I will go in lab and do my experiment. Okay. So these are very small examples of how a person gets advantage of mentorship. करेक्ट. इट्स लाइक आप क्लूलेसली काम नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि स्टेप 1 ये है, ये कंप्लीट करना है, ऐसे करना है, एंड देन फिर स्टेप 2 की तरफ एग्जैक्टली मूव करना है. सो पूरा प्रोसेस उनको मालूम है. कितने टाइम तक आपका मेंटोरशिप रहता है किसी के भी साथ, क्योंकि रिसर्च का प्रोसेस तो बहुत लंबा रहता है? इट डिपेंड्स ऑन देयर टाइमलाइन. ओके. Yes. So, there are many scholars who have not done anything and they suddenly come that now I just have 6 months. So, just tell me what should I do and how should I do it. So, for them it is 6 months. But then there are scholars also who just joined and like they are very proactive and they come that, ma'am, I still have 2.5 years. So, it is like that. Okay. As per their time span. So, आप एज एन एक्सपर्ट क्या सजेस्ट करते हो, कितना समय एटलीस्ट आपको देना चाहिए फॉर योर रिसर्च? You should give minimum 2.5 years to your research, because what happens is, if I'm starting it today and if I'm going to submit it after 2.5 years or almost 3 years, a lot of things change. So this complete time span has to be given so that you can later on make updates as well as per the changes in the literature, as per the new research that have come up. So you will have to add those research in your thesis or in your research paper. So for thesis it has to be 2.5 years. Okay. You are already on Instagram also, right? Doing Yes. quite well there. रिसर्च पेपर तो ये तो 4 साल 5 साल 3 साल का काम है, बहुत पेशेंस चाहिए. इंस्टाग्राम पे तो ये पेशेंस दिखता नहीं है. दोनों ऑडियंस बिल्कुल अलग हैं. यहाँ भी आपने इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लिया, इतनी अच्छी कम्युनिटी बना ली, वहाँ भी यू आर परफॉर्मिंग वेल. हाउ डू यू बैलेंस दिस? It is very simple. You just have to solve the problem. If I talk about the PhD coach, or even if I talk about Instagram, the only thing that I focus upon is what problem researchers are facing, and I do my work as per that, and I keep changing. Like, I'm not sticking to any one thing. I keep changing depending on what now researchers are coming up with new queries. So I start creating reels on that so that they get benefited. This is how I'm kind of trying to create the balance. Great. As a woman entrepreneur, how do you feel this education industry? How is this industry treating you? How business industry is treating you? क्योंकि जब आप स्कॉलर रहे होगे, जब आप रिसर्चर रहे होगे, जब आप प्रोफेसर रहे होगे, तो एक कहते हैं ना, एक यूनिवर्सिटी की या गाइड्स की छत्र छाया में होते हैं हम. When you are in business, you are an entrepreneur, the industry is going to treat you in a similar way. So आप कैसा महसूस करती हैं, कैसे इंडस्ट्री ने आपको ट्रीट किया? I would say it is mixed.
क्योंकि मैंने देखा है कि जब एक मेन है, उन्होंने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट एवरीवन आस्क्स इज कि आप इसको कितना बड़ा बनाओगे और Correct. क्या प्लान्स हैं, एक्सपेंशन एंड एवरीथिंग. करेक्ट. बट एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हाउ वुड यू मैनेज घर को एंड बिजनेस को. तो यू सी द डिफरेंस इन परसेप्शन कि एक को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के नज़रिए से देखा जाता है एंड दूसरे को इस नज़रिए से देखा जाता है कि हाउ वुड यू डू दैट. तो विमेन को अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, प्रूव करनी पड़ती है कि आई एम एम्बिशियस. और वहीं अदर वे मेल्स के साथ ये केस नहीं है. नहीं बट है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि मेरे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट भी रहा है. सो द फैमिली फ्रॉम विच आई एम कमिंग एंड वेयर आई गॉट मैरिड, तो मेरे इन लॉज, स्पेशली माई फादर इन लॉ, he never asked me कि how would you balance both of these things. Wow. या आप ये कैसे घर का काम कैसा चल रहा है, ये he never asked me. It's Wow. been 10 years. Wow. The only question that he asks me is how is your coaching going on, या how is office webinars Great. कैसा चल रहा है. So I have been to the other part of the thing when it comes to questions coming from family. But हाँ, it is very very natural कि most of the women entrepreneurs, they come from all of those questions while proving their credibility. तो मुझे लगता है कि for women entrepreneurs सिर्फ support important नहीं होता, उनके लिए ये भी important होता है कि ऐसे लोग हों, ऐसे like my mother-in-law as well, so ऐसे लोग हो जो समझे कि हमारे ड्रीम्स भी इम्पोर्टेंट हैं. 100%. वी आर ऑल्सो टैलेंटेड एंड वी कैन डू समथिंग. Correct. देन ओनली यू कैन डू एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर व्हाट आई एम डूइंग करंटली. यस. डॉक्टर दीप्ति, आप बहुत लकी हैं. जनरली ज़माना बदल रहा है, हम कहते हैं. मैं अपनी मदर से ही डिस्कस कर रही थी कि फादर्स मॉडर्न हो गए हैं अपनी बेटियों को लेकर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट. भाई मॉडर्न हो गए हैं, बट जब फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ की बात आती है तो वो ही लोग चेंज हो जाते हैं, राइट. इट इज़ वेरी गुड कि आपको फादर और फैमिली वैसी मिली, एंड देन आपको फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी वैसे ही मिले जो ये समझ रहे. और समझना पड़ेगा, वुमेन का लीडरशिप स्किल्स को बहुत अंडररेट किया गया है. अब नहीं कर सकते आप. अब ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, डिजिटलाइजेशन आ चुका है, अब मार्केट सबके लिए ओपन है. एंड कुछ एक स्किल्स हैं जहाँ मैं समझती हूँ कि वुमेन सच में बहुत अच्छा करती हैं. ट्रेनिंग्स में या फिर कोचिंग में, सिखाने में, देर एक्चुअली वेरी वेल, राइट. जैसे फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ना, वैसे कुछ एक स्किल सेट्स के भी हैं, एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स गुड. सो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी डिफिकल्ट होता है, बट जब लोग साथ होते हैं, सर आपके साथ हैं, फैमिली आपके साथ है, तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको घर आके ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि आपने पूरे दिन किया क्या है. एंड दे अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट एंड क्रूशियल इट इज, बिकॉज जॉब में आपका 9 to 5 है, आपको पता है. यहाँ यू आर द होल सोल प्लेयर, आपको ही सबको रखना है. टीम, आपके एम्प्लॉयज, आपके वेंडर्स, आपके क्लाइंट, सब आप पे डिपेंडेंट है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दैट यू हैव गॉट सच अ ग्रेट फैमिली. एंड वो भी इसलिए मिला बिकॉज आपका विजन बहुत अच्छा है. लाइक एनर्जीज अट्रैक्ट लाइक एनर्जीज. तो आप पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव ही लोग मिलेंगे. और वो आपके बिजनेस में, आपके ऑरा में, आपसे मैंने डिस्कस किया, वो बहुत क्लियरली नज़र आया मुझे. यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनका ड्रीम होगा. इंडिया में बहुत लोगों का सपना होता है PhD करना, डॉक्टरेट करना. बहुत सारे लोग आपको आज सुन रहे हैं जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो जस्ट मूव करेंगे इस फील्ड में, राइट. आई वॉन्ट यू टू गिव देम अ लास्ट मैसेज. आप क्या कहना चाहते हैं द PhD कोच की तरफ से, या डॉक्टर तृप्ति क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैं सीइंग द करंट सिनेरियो, अगर आप मुझसे सेम क्वेश्चन 4 years या 5 years बैक पूछते तो मेरा आंसर कुछ और होता जी. बट करंट सिनेरियो को देखते हुए जो एक ही एडवाइस मैं देना चाहती हूँ वो ये कि रिसर्चर्स, आप अभी रिसर्चर्स बने हो या नहीं बने हो, बनना चाहते हो, ऑलरेडी हो, देयर इज़ जस्ट वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप
which is your original voice, Wow. your critical thinking and decision making. Because now AI आ गया है, AI can do everything, पर आपको AI को हमेशा question करना है. It's not that कि चैट जीपीटी ने कुछ दे दिया, आपने कॉपी पेस्ट करा, यूज़ कर लिया, देखा तक नहीं. आपको हमेशा उसको क्वेश्चन करना है, उसकी क्रेडिबिलिटी को. आपको ये देखना है कि वेदर दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर और नॉट. और आपको वहाँ पर अपना रिगर, अपने स्किल्स, अपने डिसीजंस, आपका जो माइंडसेट रहा होगा जब आप रिसर्च करना चाहते हो, वो आपको यूज़ करना ही करना है. डोंट लेट एआई रिप्लेस यू. नहीं तो आप जो भी आउटपुट लेकर आओगे, जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो सब रिसर्च में, वो सब वेस्ट है. तो डोंट डू दिस. जस्ट बी योरसेल्फ. जब हम रिसर्च की भी बात कर रहे हैं तो अपनी ओरिजिनल वॉइस को कभी डिमिनिश मत होने दो. ग्रेट. सो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, डॉक्टर तृप्ति ने हमें बताया कि मार्जिन है, एक रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना. बहुत सारे लोग जो रिसर्च नहीं भी कर रहे हैं ना, ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है. बिकॉज यू नेवर नो कब सिस्टम डिपेंडेंट आप बन जाएं. You never know कब आप AI डिपेंडेंट बन जाए, and that day you will stop taking decision. I have seen Dr. Tripti, people are asking artificial intelligence, people are asking ChatGPT dinner कहाँ करना है. They're asking ChatGPT कि इस काम को कैसे करूँ. मुझे मेरे स्कूल में असाइनमेंट मिला. आई रिमेंबर हमें असाइनमेंट्स मिलते थे तो हम स्टिकर्स खरीद के लाते थे. वी यूज टू डू सम क्रिएटिविटी. वो क्रिएटिविटी ना आज मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पैनिक नहीं होता है इसमें हेल्प करती है. उस क्रिएटिविटी ने, उस तरह के काम ने जो हम चीज़ें बिल्ड करते थे, बनाते थे, असाइनमेंट्स, खुद से पोइट्रीज लिखना, चीज़ें करना, वो आज हमें हमारे ईमेल्स को कैसे ड्राफ्ट करना है, हमारे क्लाइंट से कैसे बात करना है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे अंडरस्टैंड, उन सब चीज़ों में हेल्प करता है. चैट जीपीटी हमें कभी ये नहीं सिखा सकता. वो हमारे लिए एक हेल्पिंग टूल है. अगर हम उसको उसी की तरह इस्तेमाल करेंगे जो आपने बताया, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस. हमारा हम बेहतर रिसर्च कर पाएंगे, ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे और डीप डाइव इन कर पाएंगे, क्योंकि अब हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना. मगर अगर हम उसको रिसर्च करने के लिए दे देंगे तो आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट. सो इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद यू. यू एज एन एक्सपर्ट आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. जो चैलेंजेस आपने फेस किए उनको सॉल्व करने के लिए आपने हेल्प किया. और आई थिंक इतने कम टाइम में 10,000 लोग, इट्स अ ह्यूज नंबर. आप बहुत पोलाइटली बैठे हो, बट इट्स अ ह्यूज नंबर. 10,000 लोगों की कम्युनिटी आई थिंक लोगों के पास नहीं होती है. तो आपने बहुत बड़ा काम किया है. और अब ये मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो ये नंबर 1 लाख तक पहुंच चुका होगा. आई होप सो. सो बहुत मज़ा आया एंड आई वुड लाइक टू सी यू अगेन. मैं चाहूँगी कि मैं सारी डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ऑल दीज पीपल जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, जिनके बच्चों को उनको भेजना है बाहर, राइट, फॉरेन में, आपने बताया था कि उनको भी रिसर्च का ज़रूरत है, तो वो साथ ही साथ जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, आपको भी रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना है इन द मार्केट, राइट. सो तृप्ति मैम इज देयर. मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इंक्लूडिंग द वेबसाइट, इंस्टाग्राम का लिंक, सब कुछ. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो चेक आउट, समझिए सिस्टम कैसे काम करता है, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. एंड तृप्ति मैम ने सारी चीज़ें इतनी आसान कर ली हैं कि अब अगर किसी के माइंड में वो थॉट है ना दैट आई वॉन्ट टू डू रिसर्च, तो एटलीस्ट अब तो कर लो. सो आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट विद हर एंड मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट हम सिर्फ विदेशों पर डिपेंड नहीं रहे रिसर्च के लिए. हमारे यहाँ से भी अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स निकलें, हमारे यहाँ से भी अच्छे रिसर्च पेपर्स निकलें और डॉक्टर तृप्ति की पहल के साथ जुड़ते हैं, इसको आगे बेहतर बनाते हैं. एंड आई वुड लाइक टू सी अगले 10 साल 15 साल में कुछ अच्छे रिसर्चेस, कुछ अच्छे प्राइजेस, कुछ अच्छे रिकॉग्निशन हमारे रिसर्च पेपर्स को, हमारे साइंटिस्ट को, हमारे इंडिया के लोगों को भी मिले. एंड आई थिंक इसी तरह से ग्लोबल पेडेस्टल पे इंडिया अपने आप को प्रूव कर पाएगा कि हम सच में ज्ञानवर्धक हैं, हम सच में नॉलेज हब रहे हैं. और अब नाउ इट इज़ टाइम कि हम उस पहल को आगे लेकर जाएं. नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मिलेंगे किसी और बढ़िया से विषय के साथ, किसी और एक वंडरफुल दोस्त के साथ, एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ और कुछ सवालों के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. अपना ध्यान रखिए.